دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس کہانی میں اصرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں۔ میں نے اسی نقطے کو مرکز بنایا ہے۔ سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑھی یا سنی ہو۔ اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپینس بھی، پر اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی، یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں۔ یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ والسلام، پرویز بالگرامی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دوسرا جنم ایپیسوڈ نمبر 22۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو پانسا پلٹ چکا ہوتا۔ کیمرے والا شخص داہنا گھٹنا زمین پر ٹیکے ہولسٹر سے پستول نکال رہا تھا۔ اسی وقت اس کے سر سے علی کا بوٹ ٹکرایا۔ فلائنگ کک کی چوٹ اتنی شدید تھی کہ وہ اپنی چیخ پر قابو نہ پا سکا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ سا ابلا جو اس کے چہرے کو مزید دہشت ناک بنا گیا۔ علی نے تیزی سے گھوم کر راؤنڈ کک بنائی، بائیں ٹانگ پر تیزی سے گھوما اور اس کی لات اس شخص کے چہرے سے ٹکرائی اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب سر اور ناک سے ایک ساتھ خون بہہ رہا تھا۔ علی نے مڑ کر دیکھا، باقی لوگ بھی اسلحہ سنبھالے اندر آ گئے تھے۔ انہی لوگوں نے پھرتی سے اس عورت کو شکنجے میں جکڑا اور کمرے کی تلاشی لینے لگے۔ اس تلاشی میں ایک بہت اہم کاغذ ملا، وہ ایک لسٹ تھی۔ اس لسٹ میں ایسے نام تھے جن کو ختم کرنا تھا یا کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کے سب مشہور لوگ تھے جو ختم ہو چکے تھے۔ ان کے ناموں کے آگے کراس کیا ہوا تھا۔ تلاشی جاری تھی کہ اس کمرے میں سے ایک اسموک بم آ کر گرا اور اس کا دھواں کمرے میں پھیلنے لگا۔ دھوئیں میں ایسی گیس بھی شامل تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ زمین پر گرنے ہی والے تھے۔ یہ چوٹ بھلائی نہیں جا سکتی۔ بریگیڈیئر رام پال زخمی سانپ بن چکا ہے، وہ کسی بھی وقت پورے قصبے کو ڈس لے گا، علی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پورے قصبے کو نہیں، ہمیں ڈسنے کی کوشش کرے گا، فقیر محمد بولا۔ میں نے کہا نا وہ پورے قصبے کو ڈسے گا، تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے۔ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دھوبی پر بس نہیں چلتا تو لوگ گدھے کے کان اینٹھتے ہیں۔ ہمارا بدلہ وہ قصبے کے نہتے لوگوں سے لے گا۔ بات غلط نہیں ہے، اب تک یہاں یہی تو ہوتا آیا ہے کہ مجاہدین کا بدلہ نہتے لوگوں سے لیا جا رہا ہے۔ پورے گاؤں کو آگ لگا دی جاتی ہے، احمد سروانی نے کھینچ کر کہا۔ ہر مرض کا علاج ممکن ہے، اس مرض کی جڑ تلاش کرو، یہ ناسور خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پروفیسر عثمان جو ایک طرف لا تعلقی سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے بول پڑے۔ اس مرض کا واحد علاج ہے دور دراز سے ظلم ڈھانے کے لیے منگوائے گئے فوجیوں میں خوف پیدا کرنا۔ فقیر محمد نے گفتگو میں حصہ لیا۔ میرے خیال میں بریگیڈیئر رام پال کیمپ میں چھپا بیٹھا ہے۔ اگر ہم نے حملہ کر کے کیمپ کو اجاڑ دیا تو سمجھ لیں کہ بھارتیوں میں دہشت پھیل جائے گی۔ کمانڈر علی وہاں بیٹھے لوگوں پر نظریں دوڑا کر کہا۔ میرے محسنوں، آپ لوگوں نے اس علاقے میں آ کر نئی زندگی دوڑا دی ہے، ہمیں 2 زہریلے سانپوں سے نجات دلائی ہے، اب باقی رہ گیا ایک جو سب سے زیادہ زہریلا ہے۔ اسے مارے بغیر یہاں بھڑکتی آگ کبھی بجھ ہی نہیں سکتی۔ پھر ایک بات اور ہے، اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ 3 بڑے افسروں کی موت سے ہلچل مچ جائے گی، سری نگر تک ہل جائے گا۔ ہاں یہ تو ہونا ہے، پروفیسر نے جواب دیا۔ جب یہ بات پھیلے گی تو یہاں والوں کو دبانے کے لیے مزید کمک بھیجی جائے گی۔ ظلم کا نیا باب رقم ہوگا۔ اس ظلم کا جواب دینے کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا ہوگا اور لڑنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی۔ احمد جوشیلے لہجے میں بولا۔ تو کیا اب ہتھیار بھی ہمیں ہی لا کر دینے ہوں گے؟ کمانڈر علی سے ضبط نہ ہو سکا۔
तो वो झल्लाहट भरे अंदाज में बोला। उसके लहजे की तलखी को अहमद ने महसूस कर लिया। उसने अली की पीठ पर हाथ रखकर कहा, नहीं मेरे दोस्त, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। हम कैंप पर हमला करके असला लूटेंगे, लगे हाथों ब्रिगेडियर को भी अगवा कर लाएंगे। ब्रिगेडियर ना हुआ बकरी का बचा हो गया कि दौड़े और पकड़ लाए। प्रोफेसर उस्मान जलकर बोले। भारतीय फौज के अफसर कितने बहादुर हैं, इसका नमूना तो आपने देख ही लिया। कितनी आसानी से हमने कर्नल अरोड़ा और मेजर सतोनंग सिंह का शिकार कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही ब्रिगेडियर रामपाल के बाब में होगा, लेकिन उसके लिए हमें मोरल सपोर्ट चाहिए। बाकी काम हम कर लेंगे, अहमद ने समझाने वाले अंदाज में कहा। अगर ऐसी बात है तो ये भी कर लेते हैं, तुम्हारे साथ हमले में हम भी शरीक रहेंगे। प्रोफेसर उस्मान ने फैसला सुना दिया। मैं अपने साथियों को जमा होने का हुक्म जारी कर दूंगा। शाम 4 बजे तक सब आ जाएंगे। ठीक है, हम रात में ही हमला करेंगे, कमांडर अली ने कहा तो तमाम लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अहमद ने उठकर इजाज़त ली और बाहर निकल गया। शाम के 4 बजे अहमद लौटा तो उसके साथ कई और नौजवान भी थे। उनका तारफ़ कराने के बाद उसने कहा, अली भाई, इतला हौसला अफजा है। मेरे दोस्तों ने खबर दी है कि आज सुबह 3 ट्रकों पर लदकर फौजी वापस श्रीनगर चले गए हैं। दूसरी टुकड़ी उनकी जगह लेने के लिए परसों पहुंचेगी। यही मौका है, क्योंकि कैंप में बराए नाम नफरी है। रामपाल भी वहीं छुपा हुआ है। वो पनाह के लिए तीसरी चाली में ठहरा हुआ है। उसने आला अफसरों को खबर भेजी है कि यहाँ आतंकवादियों का बहुत ज़ोर है। उन्होंने कर्नल अरोड़ा और सतोनंग सिंह को मार दिया है, इसलिए मज़ीद नफरी के साथ कमांडो भी भेजे जाएं। चलो ये भी अच्छा हुआ, नया अफसर पहले से ही दहशत ज़दा होगा, उसका शिकार भी कर लेंगे। फ़कीर मोहम्मद ने कहा, मौसम के तेवर अच्छे नहीं हैं, बारिश भी हो सकती है। ये तो हमारे हक़ में बेहतर होगा। बारिश की वजह से पहरेदार खैमों में दुबके रहेंगे और हम बाआसानी डिपो तक पहुंच जाएंगे। फ़कीर मोहम्मद की बात से सब मुत्तफिक हो गए। रात का अंधेरा उतरने तक बारिश तेज़ से तेज़ तर होती गई। जिस वक़्त वो लोग पूरी तैयारी के साथ निकले, उस वक़्त भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि पूरा इलाका अब बारा में डूब जाएगा। दरख्तों के पत्तों पर गिरती हुई बूंदें अजीब शोर पैदा कर रही थीं। ये बात उन लोगों के हक़ में बहुत बेहतर थी। इस तरह उनके चलने से जो आहट हो रही थी, वो इस शोर में दब गई थी। कैंप के नज़दीक पहुंचकर सब के सब ज़मीन पर सीने के बल लेट गए और कीचड़ में वह सब लथपथ थे। वह सब इसी हालत में क्रोलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फ़कीर मोहम्मद, अली और अहमद वगैरह के लिए ये कोई नई बात न थी, मगर प्रोफेसर उस्मान के लिए ये बिल्कुल नया तजर्बा था। अगर कोई शनासा उन्हें इस हालत में देख लेता तो उसे अपनी बेनाई पर शुबा होता। वो हैरत के करिश्मे में डूब कर मर जाता, क्योंकि प्रोफेसर उस्मान कोई मामूली आदमी ना थे। दुनिया भर के चुनिंदा साइंसदानों में से एक थे। उनकी ज़िंदगी का महवर माइक्रोस्कोप, डिजिटल डाटा इंडेक्स, टेस्ट ट्यूब वगैरह थे। उन्होंने कुलिये पर तहकीक करके साबित किया था कि इंसान चलती फिरती दुनिया है, जिसके अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों शहर आबाद हैं, जहां नज़्म व नस्क के साथ ज़िंदगी रमा दमा है। उन्होंने तजर्बात के ज़रिए जिन्नात के वजूद को साबित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से नन्हे नन्हे ज़रों से भी कई हज़ार गुना छोटे जरासीमों को बाआसानी देखा जा सकता है, इसी किस्म के उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप बनाई थी जो साए को मुजस्सम बनाकर देख सकती है। और उन्होंने प्रोफेसर अरोंटन डिमलू के नज़रिए को तजर्बात के ज़रिए सही साबित कर दिया था कि साए का भी वज़न होता है। जब उनसे अखबारी नुमाइंदों ने पूछा कि आपने ऐसा नादर ख्याल कहाँ से ढूंढा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि प्रोफेसर अरोंटन डिमलू ने 1968 में साए के वज़न का नज़रिया पेश किया, जबकि कुरान मजीद फुरकान अल हमीद में ये बात 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। सूरह अल राद आयत नंबर 8। और हर शय उसके नज़दीक एक अंदाजे से है। फिर उन्होंने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मशहूर किताब सहीफ़ा कामला में मरकूम एक दुआ की कई सतरें सुनाई थी।
मैं तेरी तस्बीह करता हूँ कि तू समावात अर्ज़ समा का वज़न जानता है। मैं तेरी तस्बीह करता हूँ कि तू तारीकी और रोशनी का वज़न जानता है। मैं तेरी तस्बीह करता हूँ कि तू साए और हवा के वज़न को जानता है। मैं तेरी तस्बीह करता हूँ कि तू हर खुशबू और बदबू के वज़न को जानता है। सूरह अल-राद की 8वीं आयत और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये मनाजात मेरी रहनुमाई करती हैं, क्योंकि ये मनाजात उस वक़्त की है जब दुनिया वाले रोशनी और साए, खुशबू, बदबू और हवा के बारे में कोई नज़रिया नहीं रखते थे। बस इतना जानते थे कि आग जलती है, शोला निकलता है तो रोशनी फैल जाती है। रोशनी के आगे कोई चीज़ आ जाए तो साए पैदा हो जाते हैं। अच्छी चीज़ की खुशबू और बुरी चीज़ की बदबू होती है, मगर उसे ना पकड़ सकते थे और ना उसके बारे में उसकी कोई तहकीक थी। फिर भी एक ऐसा शख्स जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा है, वो तो ना तो साइंसदान है और ना उस दौर में कोई और साइंसदान था, फिर उसे कैसे पता चला? यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने जो बात खुदा बता दे वो गलत हो ही नहीं सकती। इसी पॉइंट पर मैंने तहकीक की, थ्योरी ऑफ लाइट और एक्टिव पावर ऑफ डार्कनेस का एनालिसिस किया और उसकी इब्तदा अल्फा रेज, बेटा रेज और गामा रेज से की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आंखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें देखने के लिए खसूसी खुर्दबीन बनाई। उस कामयाबी ने महफूज किया और मैंने रोशनी और साए का वज़न मालूम कर लिया। अब मैं बहुत जल्द एक थ्योरी पेश करने वाला हूँ जो एक ख़ास मखलूक के बारे में है। दरअसल प्रोफेसर उस्मान जिन्नात को इंसानों के सामने लाने वाले थे। उनका तजर्बा कामयाब ठहरा था, मगर इससे पहले ही उन्होंने बददिल होकर अमेरिका छोड़ दिया। उसी तहकीक को मुकम्मल करने के लिए वो बलूचिस्तान के उस दूर अफ्तादा इलाके में लेबॉर्ट्री बनाकर तजर्बा कर रहे थे। जिन्नात पर तजर्बा मुकम्मल करके वो जहन्नम की आग की तपश पर तजर्बा करने वाले थे कि किस्मत उन्हें मकबूजा कश्मीर में खींच लाई। वही इतना बड़ा साइंटिस्ट इस वक्त किसी ट्रेंड गोरिल्ला फाइटर की तरह कीचड़ में क्रोलिंग कर रहा था। उनके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। उनके चेहरे पर फैले आसार बता रहे थे कि उन्हें इस काम में बहुत लुत्फ़ आ रहा है और वो उसका जिक्र कई बार कर चुके थे कि उन्हें कुफ़ार से टकराने में ख़ास मज़ा मिलता है। यकीनन जहाद में लुत्फ़ ही लुत्फ़ है, तभी तो इन कटीली झाड़ियों के कांटे भी फूल लगते हैं। वो सब झाड़ियों से निकलकर जब ढलवान पर पहुँचे तो रात का पहला पहर ख़त्म हो रहा था। किसी भी जी रूह की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ बारिश की बूंदों का शोर था। कैंप तक पहुंचने में किसी रुकावट का सामना ना हुआ। कैंप के गिर्द तार लगे हुए थे। जब से मुजाहिदीन की कार्रवाई तेज़ हुई थी, पूरे मकबूजा कश्मीर में कैंपों के गिर्द खारदार तार लगा दिए गए थे। जहां जहां मुजाहिदीन का जोर था वहां वहां तारों में करंट भी छोड़ दिया जाता था, लेकिन यहां अमन का दौरा था, इसलिए इतनी मुस्तैदी ना थी। अहमद के पास कटर था। उसने तारों को 2 जगह से काटा तो इतनी जगह बन गई कि एक आदमी बाआसानी अंदर दाखिल हो सकता था। उसी रात से एक के बाद एक सब अंदर दाखिल हुए। अंदर पहुंचकर वो सब फिर सीने के बल लेट गए और आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानब खिसकने लगे। अहमद सबसे आगे था। वो टीन की चादरों से बने उस कैबिन की तरफ बढ़ रहा था जिसके अंदर बारिश से बचने के लिए एक सिपाही खड़ा पहरा दे रहा था। अहमद क्रोलिंग करता हुआ उसके सर पर जा पहुंचा। फिर उसने पैर से बंधा एक बड़ा सा खंजर निकाला और खिड़की पर पहुंचकर कमाले फुर्ती से उसने वो खंजर सिपाही के गले में उतार दिया। उसका ये वार निपा तुला था। अगर बिल्कुल सही अंदाजे में ये काम किया जाए तो शिकार की हलक से ज़रा भी आवाज़ नहीं निकलती और उसके फेफड़ों में खून भर जाता है। वो महज हल्की सी खांसी जैसी आवाज़ निकाल कर मर जाता है। अहमद ने शायद गौर नहीं किया था। कैबिन के बराबर में बरसाती पहने एक और सिपाही खड़ा था या कैबिन की तरफ आ रहा था।
उसे शायद गड़बड़ का एहसास हो गया। वो तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ा कि फ़कीर मोहम्मद ने बरसों पुराना तरीका इस्तेमाल कर दिया। तकरीबन 1 सदी पहले ये तरीका बहुत मकबूल था। रुमाल के एक कोने में सिक्का बांधते और दूसरे कोने को चुटकी से पकड़ते और फिर उसे झटके से मालदार मुसाफिर के गले में डालकर खींचते और वो बेचारा मुसाफिर मर जाता। ठगों के इसी अंदाज को फ़कीर मोहम्मद काम में लाया और वो सिपाही चीख भी ना सका। उसकी गर्दन का मनका टूट गया और उसकी सांस घुट कर रह गई। उसका काम तमाम करने के बाद वह सब मज़ीद आगे बढ़े। कैंप के फ़ौजी खुद को बहुत ज़्यादा महफूज समझकर नींद के मज़े लूट रहे थे। अहमद अली और फ़कीर मोहम्मद कैचवे की तरह बेआवाज़ रेंगते हुए इतनी फुर्ती से आगे बढ़ रहे थे जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि वह सब इस काम में माहिर हैं। आखिर को मुजाहिदीन थे ना, सर्द गर्म के आदी तो होना था। वह सब उस जन्म बढ़ रहे थे जिधर चौबी दीवार पे छत डालकर डिपो बनवाया गया था। वह सब डिपो के बहुत करीब पहुंच गए थे कि डिपो के पहरेदार को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने शायद उन्हें देखा हो, यकीनन उसे छठी हिस्स ने किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाया होगा और उसने खौफजदा होकर LMG का पूरा बरस्ट चला दिया था। वह सब अपनी जगह साकत हो गए। हरकत करने से देख लिए जाने का खतरा था। दुश्मन ने बरस्ट मारने पर इत्तफार नहीं किया था, बल्कि रोशनी फैलाने वाले हल्के गोले भी छोड़े थे। रोशनी फैलाने वाला बम हवा में मुअल्लक धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और उसकी चकाचौंध रोशनी में ज़रा ज़रा चमक रहा था। फिल्टर बम की रोशनी बीक वक़्त कई सिमतों में फैलती है, इसलिए उनमें से हर एक के कई साए बन गए थे और सब के सब मुतहरक थे। उनके असले भी साया पैदा कर रहे थे। पूरा कैंप मनवर हो गया था। इतनी रोशनी फैली थी कि अगर सुई भी गिरती तो साफ नज़र आ जाती। उसके बाद तो गोया क़यामत बर्पा हो गई। उन पर बराह रास्त फायर होने लगे और जवाब में उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी थी। वो खारदार बॉर्डर के इतने अंदर आ चुके थे कि अब लौटना भी नामुमकिन बन चुका था। गुलाम रसूल का जहन जवाब देने से कासर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कुछ क्या है। वो पुरइसरार लड़की हर बार एक नए अंदाज में सामने आ रही है और हर बार उसका एक ही दावा सुनने में आता है कि वही जोनो है। माजी करीब में उस इलाके पर जिस राजा की हुक्मरानी थी वो उसी की बेटी है और ये प्रोफेसर का दूसरा जन्म है। यही कुछ प्रोफेसर को ख्वाब में भी नज़र आ रहा था, मगर अब वही ख्वाब उसे नज़र आ रहे थे। प्रोफेसर उस्मान ने भी तो यही बताया था कि उसे किस तवार ख्वाब एक पुराने पेड़ के नीचे नज़र आता है। क्या ये वही पेड़ है? उसे जोनू महबूबा की शक्ल में क्यों नज़र आ रही है? प्रोफेसर और वो दोनों दोस्त हैं, फिर ख्वाब में रकीब क्यों नज़र आ रहे हैं? यही कुछ सोचता हुआ वो बढ़ता चला जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे ख्वाब के मनाज़र याद आ रहे थे। उसे अच्छी तरह यकीन था कि उसने ख्वाब में उसी नंगार को ही देखा था। उस गांव का चप्पा चप्पा वो पुरानी हालत में देख चुका है। उस हवेली को भी वो पहचान चुका था जिसमें आजकल वो रह रहा था। यही वो हवेली थी जो उसे ख्वाब में नज़र आई थी। वो अपनी सोच में गुम हवेली तक पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ कैथी से टकराव हो गया। किस सोच में डूबे हुए हो? कैथी ने पूछा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कहाँ से सुनाऊं। बस ये समझ लो कि मैं ज़हनी तौर पर दिवालिया हो गया हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ? तुम्हें याद है ना कि प्रोफेसर को एक दिलचस्प ख्वाब मुसलसल नज़र आ रहा था जिसमें वो किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार थे। शायद उन्होंने उस लड़की का नाम जोनू बताया था। वैसा ही ख्वाब आज मुझे भी नज़र आया और मज़ेदार बात यह है कि मैंने खुद को जोनों के महबूब की शक्ल में देखा। हो सकता है वो ख्वाब तुम्हारे तहतर शोर में छुपा रह गया हो, कैथी ने मदलिल जवाब दिया। और उस मकाम तक जहाँ बैठकर मैंने ख्वाब देखा मुझे वही पुरइसरार लड़की ले गई थी जिसके बारे में मैंने कई बार तुम्हें भी बताया है। वही लड़की जो बेज़िद है कि ये प्रोफेसर का दूसरा जन्म है। हाँ, वही लड़की। बहुत सारी बातें वक्त बताता है, तशरीह करता है। अभी से जहन पर जोर ना डालो। तुम्हारे दलाइल ने तो मुझे कायल ही कर दिया है कि दूसरा जन्म नहीं होता। इसलिए इंतज़ार करो, आहिस्ता आहिस्ता बात खुल जाएगी। वो लड़की क्या चाहती है? वो कौन है?
اتنے پر اسرار انداز میں کیوں مل رہی ہے؟ مجھ میں اتنا انتظار کا پارا نہیں ہے۔ تمہیں نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کا قول سنایا تھا کہ علم 3 چیزوں میں ہوتا ہے: بولتی ہوئی کتاب، جاری رہنے والی سنت اور مجھے معلوم نہیں۔ پھر تم اس مجھے نہیں معلوم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کتنی گہرائی ہے اس لفظ میں! جب تک ذہن میں یہ جملہ رہتا ہے معلوم کرنے کا تجسس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی تو کر رہا ہوں، اسی تجسس کو دور کرنے میں کوشاں ہوں۔ میرے خیال سے تم اس لڑکی کو ذہن پر سوار نہ کرو، کیتھی نے سوچتے ہوئے کہا، بلکہ ذہن کو کھلا چھوڑ دو۔ کچھ عرصے کے لیے ذہن کو آزاد چھوڑ کر دوسری دلچسپیوں کی طرف مڑ جاؤ۔ اپنے دوربین کی طرف توجہ دو، ستاروں پر ذہن کو مرکوز کر دو۔ اس طرح سے ذہنی روح خود بخود مڑ جائے گی۔ تم کیسی متضاد باتیں کرنے لگی ہو؟ کبھی کہتی ہو تجسس بڑھاؤ، پھر کہتی ہو ذہن کو آزاد چھوڑ دو۔ کیوں بھئی، یہ کیسے مشورے دے رہی ہو؟ مجھے یہ خیال آیا ہے کہ کہیں تم ذہنی طور پر دباؤ کا شکار تو نہیں ہو اور یہ سب ذہن کی کرشمہ سازی ہے۔ تم نے کیا مجھے ذہنی دیوالیہ پن کا شکار سمجھ لیا ہے؟ میں نے بس ایک خیال پیش کیا ہے۔ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، آزمانے میں کیا حرج ہے؟ آزما کر دیکھ لو۔ چلو تمہارا مشورہ بھی مان کر دیکھ لیتا ہوں۔ عقل مندوں کی باتوں کو رد کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے، اور یقیناً تم ان میں سے نہیں ہو، کیتھی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم اب عقل مند بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ کرو، شاید کامیاب ہو جاؤ۔ غلام رسول نے جوابی چوٹ کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ذرا ہوا خوری کرنے جا رہا ہوں، اس طرح روح کو بھی تازگی ملے گی۔ پھر وہ باہر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ غلام رسول کس مقصد کے لیے دوبارہ اس درخت کے نیچے پہنچا تھا، یہ خود اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ شاید وہ بے چینی تھی جو اس کے اندر سے اٹھی تھی اور اسے حویلی سے باہر کھینچ لائی۔ پھر وہ کسی معمول کی طرح یہاں تک کھینچ آیا، اور اب لڑکی کے کہنے اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کے رگ رگ میں سکون سا اتر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں اور وہ بند آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ پہاڑ کی ترائی طے کرتے ہوئے وہ دونوں ساتھ ساتھ آگے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ترائی کے حاشیے پر چنار کے درختوں کے جھنڈ تھے، جن سے گزر کر وہ اونچے نیچے بوڑھے اور گھنے درختوں کی طرف بڑھنے لگے اور ایک چشمے پر پہنچ گئے جو شمالی پہاڑی سے اتر کر جنگل میں ناگن کی طرح بل کھاتا مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں کناروں کو گھنی جھاڑیوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ اس گھنے خوبصورت جنگل میں چشمہ دیکھ کر انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آدم کی گم شدہ جنت میں آ گئے ہوں۔ ان کے انگ انگ سے مستی جھلکنے لگی تھی۔ وہ دونوں چڑیوں کی طرح چہک رہے تھے، اور پھر وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئے۔ چشمے کا پانی اس پتھر سے ٹکرا ٹکرا کر جھاگ اڑا رہا تھا۔ ان دونوں سے چند ہاتھ کی دوری پر آ کر وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا، مگر اس نے ایک پیڑ کی آڑ لے رکھی تھی۔ وہ اس کے اتنے نزدیک تھا کہ ان کی آواز بآسانی سن سکتا تھا۔ لڑکی نے پیار کے رس میں شربور لہجے سے خاموشی توڑ دی۔ اسد الکبیر، تم تپتے ہوئے صحرا سے نکل کر اس سرد ترین خطے برفانی علاقے میں میرے لیے ہی آئے ہو۔ میری قسمت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے، میری محبت نے تمہیں کھینچا ہے، ورنہ تم اس جنت نذیر وادی میں کبھی نہ آتے۔ ہاں دونوں، واقعی یہ جنت نذیر وادی ہے، بلکہ نئی جنت ہے، اور میں ایک نیا آدم، اور اس ننگار کی جنت میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ نیکی اور بدی کے درختوں کی پہچان کروں، اس ہوا کو جو زونوں کی شکل میں سب سے تنہا، سب سے اکیلی ہے، سہارا دوں، کیونکہ یہاں بھی ایک شیطان ہے، ایسا نامی شیطان جو اس بستی میں رہتا ہے، سانپ کے روپ میں بسیرا لیتا ہے۔ اسد الکبیر اپنی رو میں بولا چلا جا رہا تھا، اور دونوں اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے جب مجھے اس کھڈ میں گرنے سے روکا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ اس میں سانپ رینگ رہے ہیں۔ یقیناً وہ سانپ ایسن کا ایک روپ ہے۔ یہ تم ایسن کی رٹ کیوں لگائے ہوئے ہو؟ فی الحال سب کچھ بھول بھال کر میرے الفاظ کی مٹھاس کو محسوس کرو۔ تم یہاں صرف میری خاطر آئے ہو، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ میری آنکھوں کی چمک کو دیکھو، میرے دل میں اٹھے مد و جزر کا احساس کرو۔ میری قسمت کی آنکھ کا آنسو ہوں، اور تم دامن
इस आंसू को अपनी किस्मत का सितारा बना लो जो नंगार के काले आसमान पर चमका है और जोहरा की तरह एक नई सिमत इशारा कर रहा है। जोनू ने जज्बात से सरशार आवाज़ में कहा, वाकई क्या तुम ये मान रही हो कि मैं आया नहीं, तुम्हारे लिए भेजा गया हूँ? ये मेरा वहम नहीं, यकीन है, जोनू ने उसके हाथ को थाम कर कहा। असदल कबीर का तमतमाया चेहरा बता रहा था कि वो जोनू की कुर्बत की गर्मी और ताजगी महसूस कर रहा है। उसने अपने सर को जोनू के कंधे से लगा दिया था। तभी जोनू जैसे चौंक उठी, नींद से बेदार हो गई। उसने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, अभी तुम मेरे कुछ नहीं हो, पहले गवाह बनाओ फिर मुझे अपनाना, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी होंगी। फिर वह झटके से उठी थी और दौड़ती चली गई। असदल कबीर सख्ते में बैठा रह गया था और वो जो पेड़ के पीछे खड़ा सब कुछ देख और सुन रहा था। दोनों के जाते ही आगे बढ़ा था कि उसका पाँव किसी पत्थर पर आ गया था और वो खुद को संभालते संभालते भी गिर पड़ा। गुलाम रसूल उसी पेड़ के नीचे बैठा सर पकड़े हुए था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि वो लड़की फिर किसी छल्लावे की तरह सामने आकर गायब हो गई थी। वो अपनी जगह से उठा और वापस हवेली की तरफ चल पड़ा। वो जल्द से जल्द हवेली में पहुंचना चाहता था। कैथी से डिस्कस करने का ख्वाह था, इसीलिए वो तेज़ तेज़ चल रहा था।